الکیمسٹ کو دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں گنا جاتا ہے۔ یہ 1987 میں لکھی گئی یہ کتابیں ہی ہیں جو ہم پہ زندگی کے نئے مطلب کھولتی ہیں، بولنے کو نئے لفظ دیتی ہیں، سوچنے کو نئی سوچ دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک چرواہے کی جس کو بار بار ایک خزانے کا خواب پریشان کرتا ہے۔ دلچسپ۔ میں تمہیں کوئی اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تم یہاں پہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، اور خواب خدا کا کلام ہے۔ میں تم سے اس وقت خواب کی فیس نہیں لوں گی، لیکن جب تمہیں خزانہ ملے تو تم مجھے اس کا 10واں حصہ دو گے۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم جاؤ گے احرام مصر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب اپنے سچے دل سے منزل کے حصول کے لیے نکل پڑتا ہے تو ساری کائنات اس کی منزل کے حصول میں مدد کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ کتابیں اور مطالعہ ہی ہے جو ہر انسان کی زندگی میں نئے اور بہتر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یہ کتابیں ہی ہیں جو ہم پہ زندگی کے نئے مطلب کھولتی ہیں، بولنے کو نئے لفظ دیتی ہیں، سوچنے کو نئی سوچ دیتی ہیں، سوچ کے نئے زاویے دیتی ہیں۔ کبھی برے وقت میں ہمارے لیے امید کی کرن بنتی ہیں اور کبھی ہمیں خوشیوں کا راستہ بتاتی ہیں۔ آج ہم جس کتاب کا ذکر کریں گے یا جس کتاب کے حوالے سے بات کریں گے اس نے بے شمار لوگوں کی زندگی بھی بدلی ہے، ان کو نئی سوچ دی، نیا راستہ بتایا، جینے کا نیا طریقہ سکھایا۔ ناظرین، میرے زیر مطالعہ جو کتاب ہے وہ مشہور برازیلین رائٹر پاولو کویلہو کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے الکیمسٹ۔ الکیمسٹ کو دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں گنا جاتا ہے۔ یہ 1987 میں لکھی گئی۔ اس وقت پاولو کویلہو جو تھا وہ بڑی کسمہ پرسی کی زندگی گزارا تھا۔ شروع میں اس کتاب کو کوئی پذیرائی نہیں ملی، لیکن پھر ایک چھوٹے سے پبلشر نے چند سینکڑوں کتابیں چھاپی اور پھر وہ گھر گھر جا کے لوگوں میں بانٹی اور پڑھنے کی درخواست کی کہ پلیز یہ کتاب ضرور پڑھیے۔ اور آج تقریباً 6 کروڑ لوگوں نے یہ کتاب جو ہے وہ پڑھی، اور دنیا کی 65 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ایک چرواہے کی جس کو بار بار ایک خزانے کا خواب پریشان کرتا ہے۔ اس کے اندر دنیا کی سیر کرنے کا شوق نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنا رخت سفر اٹھایا اور بکریوں کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ یہاں سے وہ سفر شروع ہوا جس نے اس لڑکے کی زندگی بدل دی۔ اس لڑکے نے نئی دنیا دیکھنا شروع کی۔ بکریاں چرانے کے سلسلے میں جب وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا تو اس سے طریفہ نامی ایک گاؤں میں ایک لڑکی سے ملا، پر اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس گاؤں میں جائے تاکہ اس لڑکی سے ملاقات کر سکے۔ تو وہ اس گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ سنٹیاگو نے سوچا کہ بہتری یہی ہے کہ رات یہیں گزار دی جائے اور صبح ہوتے ہی چل پڑوں گا۔ سنٹیاگو نے اپنی بکریاں ایک ویران چرچ میں داخل کی اور باہر آ کے سائکومور ٹری کے نیچے سو گیا۔ سوتے ہوئے اس نے خواب میں دیکھا کہ پیرامڈز نامی ایک پہاڑ کے نیچے خزانہ دفن ہے، اور وہ خزانہ سنٹیاگو کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ آج ضرور کسی سے اس خواب کی تعبیر ضرور پوچھے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی یہ خواب دیکھ چکا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر ایک عورت کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ دلچسپ۔ میں تمہیں کوئی اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے نہیں آیا۔ تم یہاں پہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آئے ہو، اور خواب خدا کا کلام ہے۔ اگر خدا ہماری زبان میں بات کرے تو میں اس کی تعبیر بتا سکتی ہوں، اور اگر خدا روح کی زبان میں بات کرے تو پھر وہی اس کا مطلب جان سکتا ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے۔
और अगर तुम मुझसे मशवरा लोगे तो मैं इससे तुम्हारी फीस लूंगी। मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं अपनी चरागाह में हूँ और वहाँ पर एक बच्चा आता है। बच्चा आके मेरी बकरियों के साथ खेलना शुरू कर देता है, लेकिन मैं मर्दों को ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि बकरियां मर्दों से खौफजदा होकर भागने लगती हैं। पता नहीं ये जानवरों को इंसानों की उम्र का एहसास कैसे हो जाता है। तुम मुझे अपने ख्वाब के बारे में मजीद बताओ। बच्चा काफ़ी देर तक मेरी बकरियों के साथ खेलता रहा। फिर वो मेरे करीब आया, उसने मुझे हाथों से पकड़ा और उछाला, और मैंने खुद को एहराम मिस्र पे पाया। बच्चा मेरे करीब आया और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम यहाँ आ जाओ तो तुम्हें एक खजाना मिल सकता है। वो जैसे ही मुझे खजाने की जगह दिखाने लगता है तो मेरी आँख खुल जाती है। मैं तुमसे इस वक्त ख्वाब की फीस नहीं लूंगी, लेकिन जब तुम्हें खजाना मिले तो तुम मुझे इसका 10वां हिस्सा दोगे। हाँ ठीक है, तुम मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। तो तुम पहले कसम उठाओ कि जब तुम्हें खजाना मिल जाए तो तुम मुझे इसका 10वां हिस्सा दोगे। ठीक है, मैं कसम खाता हूँ, अगर मुझे खजाना मिल गया तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें दे दूँगा। ये ख्वाब अगरचे खुदा का कलाम है तुमसे, लेकिन दुनियावी ज़बान में इसकी ताबीर मुश्किल है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मैं इसी वजह से खजाने का 10वां हिस्सा रखने के लिए बिल्कुल हक बजानिब हूँ। खैर, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम जाओगे एहराम मिस्र। अगरचे मैंने इन एहराम के बारे में इससे कबल नहीं सुना, लेकिन अगर ये ख्वाब तुम्हें किसी बच्चे ने बताया है तो फिर ये हकीकत है, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते। एहराम में मिस्र पर तुम्हें खजाना मिलेगा जो तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना देगा। मुझे इस काम के लिए अपना वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा ख्वाब बहुत मुश्किल है। कभी बहुत सी आसान चीज़ें मुश्किल नज़र आती हैं और इनके बारे में सिर्फ ज़ीरक इंसान ही समझने की सलाहियत रखते हैं। मैं ये हरगिज़ दावा नहीं कर रही कि मैं बहुत ज़ीरक इंसान हूँ, इसीलिए मैंने हाथ की तहरीर के बारे में पढ़ना सीखा ताकि मैं इससे मदद ले सकूँ। ठीक है, मुझे बताओ कैसे पहुंच सकता हूँ मैं एहराम मिस्र? मैं तुम्हें सिर्फ ख्वाब की ताबीर बता सकती हूँ। और अगर मैं एहराम मिस्र कभी ना पहुंच सका तो क्या होगा? तो फिर मुझे मेरी फीस नहीं मिलेगी, और ये कई दफ़ा भी नहीं होगा। वापसी पे वो लड़का किसी काम से बाजार रुका। वहीं पे उसकी मुलाकात एक बूढ़े से हुई। बूढ़ा उससे बातें करने लगा, गो कि वो उस बूढ़े आदमी के साथ बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो तो किताब पढ़ रहा था। लेकिन अचानक ही उस बूढ़े आदमी ने कहा कि वो उसे खजाना हासिल करने में मदद कर सकता है। लड़के ने बड़ी हैरत से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा और ये कैलकुलेट किया कि हो सकता है कि उस बूढ़ी औरत ने इसको बताया हो और ये मुझे बेवकूफ बना रहा हो। उसे बूढ़े आदमी ने कहा कि वो किसी बूढ़ी औरत को नहीं जानता। इसके बाद उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के के वालिद और वालदा का नाम तक जमीन पर लिखा, साथ ही कुछ ऐसे राज और ऐसी बातें भी जमीन पर लिखी जो उस लड़के के अलावा और कोई नहीं जानता था। ये देखने के बाद लड़का बड़ा हैरान हुआ और तवज्जो से उस बूढ़े आदमी की बातें सुनने लगा। बूढ़ा बोला कि वो उसे उस खजाने का पता बता सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसे अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा दे। लड़का कहता है कि मैं तो अपना 10वां हिस्सा बकरियों का नहीं दे सकता, लेकिन वो वादा करता है कि वो उसे खजाने का 10वां हिस्सा जरूर देगा। बूढ़ा जवाब देता है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज के बदले कोई ऐसा राज कैसे बता सकता हूं जो अभी तक तुम्हारी अपनी मलकियत नहीं। लड़का ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। बूढ़ा उससे कहता है कि आदमी जब छोटा होता है तो अपनी मंजिलों के बारे में बड़ा पुरजोश होता है और उसके पीछे जाने से नहीं डरता, लेकिन जैसे जैसे बंदे की उम्र गुजरती जाती है बंदा मनफी ख्यालों में घिरने लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि बंदा जब अपने सच्चे दिल से मंजिल के हसूल के लिए निकल पड़ता है तो सारी कायनात उसकी मंजिल के हसूल में मदद करती है। बूढ़े की ये बात सुनकर लड़का
सोच में पड़ जाता है। फैसला करता है कि वो बूढ़े आदमी की बात मान लेगा। लड़के ने उसी वक्त अपनी बकरियों का 10वां हिस्सा छोड़कर बाकी तमाम बकरियां फरोख्त कर दी और बदले में कुछ सोने के सिक्के और पैसे जमा कर दिए और बकरियों का 10वां हिस्सा उस बूढ़े आदमी को पेश कर दिया और सफर पर निकलने के लिए तैयार हो गया। जाते हुए उस बूढ़े ने लड़के को खजाने तक पहुंचने की हिदायत जारी कर दी और साथ ही 2 पत्थर भी इनायत कर दिए जिनकी मदद से वो कुदरत के इशारों को समझ सके, उनके मुताबिक अच्छा फैसला कर सके और मुमकिन मुसीबत से निजात पा सके। इसके बाद लड़का एक करीबी बहरी अड्डे पर पहुंच गया और अफ्रीका जाने वाले एक जहाज पर बैठ गया। सबसे पहले वो मोरक्को पहुंचा, वहां कुछ दिन क़याम किया ताकि सफरी थकान कम हो सके। लेकिन अभी वो वहीं था कि 5 डाकुओं ने उस लड़के पर हमला कर दिया और उससे सारे पैसे और सोने के सिक्के छीन लिए। लड़का बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ और अपने आप को कोसने लगा कि उसने ये सफर इख्तियार ही क्यों किया। इसके बाद वो लड़का एक क्रिस्टल मर्चेंट की दुकान पर पहुंचा और उसने उससे दरखास्त की कि वो उसको वहां मुलाजमत दे दे। 6 माह काम किया वहां। इसके बदले में जो तनख्वाह मिली उसको जोड़ता रहा ताकि अधूरे मिशन को मुकम्मल कर सके। एक दिन उसे पता चलता है कि मोरक्को एक कारवान जा रहा है। वो फटाफट तैयारी करता है, दुकान के मालिक से इजाज़त लेता है और कारवान के साथ मिल जाता है। कारवान में लड़के को एक अंग्रेज मिलता है जो बातों बातों में उसे बताता है कि वो एक केमिस्ट से मिलने जा रहा है जो लोहे और दूसरी धातुओं को सोने में बदलने की सलाहियत रखता है। जब वो लड़का अंग्रेज केमिस्ट के गांव पहुंचता है तो गांव से थोड़ी दूर 2 कबीलों में जंग छिड़ जाती है और वहां उस गांव में वो रुक जाता है। दोनों केमिस्ट का पता पूछते हैं, एक गांव में पहुंचते हैं जहां कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही हैं। वहीं लड़के की मुलाकात एक फातिमा नामी लड़की से हुई।